ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید۔ حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا۔ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے۔ ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی؟ آپ نے فرمایا 3 شرطوں پہ قائم رہنا، 3 شرطوں پہ۔ ایک، اللہ والوں پہ زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض، کوئی چیز نظر آئے بھی تو شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا کہ میری نگاہ کی غلطی ہے۔ اور دوسرا، روز اپنے اوپر محنت کرنا، محبت کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کہنے کی ضرورت، تجھے اشارہ سمجھ جانا چاہیے۔ عبد الواحد بن زید کہنے لگے حضور ملے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا مطالبہ بھی غلط ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، ملتا کیا ہے، غلامی میں آ گئے۔ فرماتے ہیں 30 سال نوکری کی حضرت کی، 30 سال۔ لوگ کہنے لگے بابا پھر ملا کیا؟ فرمانے لگے تم نے بھی مطالبہ غلط کیا ہے، یہی تو میں کر بیٹھا تھا۔ کہا ملا کیا؟ آپ فرمانے لگے میرا اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ دعا کر کے رب سے لیتے ہیں، میں دعا نہیں کرتا، ابھی میں سوچتا بھی پورا نہیں، میرا رب وہ چیز پہلے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ اور بغداد کے لوگ کہتے ہیں بغداد میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، کٹھے ہو کے سارے گئے، آپ بغداد آئے ہوئے تھے، کٹھے ہو کے لوگ گئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھے ہیں میرے پاس، بارش کی دعا کر دیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہنے لگے اے اللہ تجھے پتہ ہے یہ میرے دروازے تک آ گئے، پہنچ گئے، ابھی تک بارش نہیں آئی، اور لفظ پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے واسطہ میری اس عقیدت کا جو مجھے حضرت حسن بصری کے ساتھ ہے، اس عقیدت کا واسطہ، مجھے رسوا نہ کر۔ انہیں بھیجا کیوں تھا اگر برسانی نہیں تھی؟ دعا دیکھیں، محبت کے رنگ میں دعا ہو رہی ہے، واسطہ بھی محبت کا دیا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں بس حضرت کے جملے بھی پورے نہیں ہوئے، رب کریم نے بارش عطا فرما دی، جملے بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ نے بارش دے دی۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔
हज़रत बहलोल जनाब भी सड़क के किनारे बैठे थे तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते, और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तुम मुझे कोई हुक्म ही कर दे। आप हंसने लगे, फरमाने लगे यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है, तो मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ तू मुझे उलझा रहा है, हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे ये छोड़ दें, आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से ज़रूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता। इतना ना दौड़े बंदों के पीछे, इतना ना मनाए बंदों को, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपने रब की बारगाह में रोना। मैं कहूँगा माओ से, मैं कहूँगा वालिद से, सिफारिशें तुमने बड़ी ढूंढ ली, जद्दोजहद बड़ी कर ली, यारों से बड़ा कह लिया कि बेटे को बाहर भेजना है, कोई कारोबार ठीक करना है, अब कुछ दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का भी तो खटखटाओ ना। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दी है, फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो भी मांगे अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। वो बड़ा रोलिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रोलिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को मायल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली। कुछ दुआएं उसके हुजूर ना मांगे। कुछ लोग ना बड़े मेहमान सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे। हाँ जी, दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे तो कर्जा चढ़ गया। कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ के कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाए, पैसे रख। सब झगड़ा कर। हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता। उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज़ लोग बेचने वाले आ जाते हैं। उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है, तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो खा ले। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे। हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ जाए, ये भी सारे पैसे लेने ही आए, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाए। तो वो नौजवान रो पड़ा। कहने लगा हजरत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर। हजरत बड़े परेशान हो, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करूँ। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आया। ढेर सारा नजराना पेश किया। हुजूर मेरा दिल करता है, और हुजूर का फरमान है
जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से है, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत क्या है। तो उसने नज़र पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था, हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए, सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए? फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था, एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी न सुनो ना। हदीस है बहकी शरीफ। हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है? वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं, और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं, जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते हैं उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले। हजरत सोबान बिन मालिक आके रो ही पड़े थे ना, हुजूर ने खुद जाके पूछा क्या हुआ, बताना नहीं पड़ा, बस आंसू छलके। तो नबी करीम ने फरमाया सोबान क्या हुआ? अर्ज की दिल नहीं लगता, यहाँ तो परेशान होता हूँ तो ज़ियारत कर लेता हूँ, तो जन्नत में कैसे दिल लगेगा? बस वो रोए थे ना, हज़रत जिब्रील आ गए, कहा महबूब रब फरमाता है जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे जन्नत में भी अल्लाह पड़ोस अता कर देगा। रो पड़े तो जन्नत तक बात चली गई, रो पड़े तो मेरे अजीज ये तो है ना आम आदमी का रोना, सहाबा का रोना। और अगर आंसू नबी पाक के निकल आए तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उन आयात की तिलावत फरमा रहे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आई, तो जनाब ईसा के बारे में आई, जिन आयात में हज़रत इब्राहीम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग गुमराह कर दिए गए, और जिनमें ये फरमाया कि या अल्लाह जो मेरी इताअत करेंगे वो मेरे हैं, और जो मेरी नाफरमानी करे तो उनके लिए गफूर है। जब अपनी अपनी उम्मत के गुनाहगारों का तज़किरा जनाब इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो करते हैं, और कुरान मजीद ने जिसका बयान किया उसको हुजूर ने पढ़ा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। मुस्लिम शरीफ, हुजूर रोए। अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील जाइए मेरे हबीब से पूछिए क्या मामला है। हज़रत जिब्रील आए, हालांकि रब जानता है, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह रब फरमाता है आप रो रहे हैं, तो कहा जिब्रील उम्मत के लिए रो रहा। आपकी तवज्जो है मेरी बात? हुजूर उम्मत के लिए रोते हैं, अल्लाह करे उम्मती भी कभी नबी के लिए रोए। कहा उम्मत के लिए रो रहा हूँ। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दोबारा अर्ज़ गुजार हुए मालिक आपके हबीब उम्मत के लिए रो रहे हैं। तो फरमाया मेरे हबीब से कह दे वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, आपका रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह आपको राज़ी कर देगा। महबूब उम्मत के बारे में परेशान नहीं करेगा, अपनी तन्हाई को आबाद करें, अकेले में अल्लाह अल्लाह करें, तिलावत कलाम मजीद का इस तरह का ज़ौक़ हो। हज़रत उमर सुना करते थे तो रो पड़ा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली सफ़ में कुरान मजीद की तिलावत करके रोते थे तो तीसरी सफ़ तक आपकी हिचकियों की आवाज़ जाती थी। उन लोगों का दर्द ही सारे का सारा किताब व सुन्नत से, अल्लाह रसूल की बारगाह से हमने ना अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। दुनियादारों के सामने रो रो के, दुख बता बता के परेशान। वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं तगड़े रिश्तेदार आते हैं ना तो कई दफ़ा मेरा माज़ अल्लाह झूठ बोलने को दिल करता। कहते हालात कैसे हैं तो मेरा दिल करता उनको कहने को कि तुमसे बड़े अच्छे हैं।
अगरचे गरीबी है। कहते हैं मैं चिढ़ता हूँ कि बंदों का क्या काम है आके मेरे लिए परेशानी का इजहार करें और कहें कि हुक्म हुआ तो बताना, क्या मतलब है। वो कोई शायर था ना, तो कोई बंदा 5 रुपए फेंक गया उसको, उसने कहा जी आपको ज़रूरत होगी, तो बड़ा दानश्वर आदमी था, उसने कहा उठ अपने पैसे ले जा, मुझे ज़रूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांग लूँगा। उसने कहा यार जुए तलब और मैं आपसे करूं, तेरे जैसे बंदे हम मुझे देंगे। ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं रब रसूल की बारगाह में रो लूंगा, मुझे अल्लाह की बारगाह से मिलो। कितना मिलेगा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इतना मिलेगा कि बंदे का गुमान भी नहीं हो। एक बहुत बड़ा सेठ आ गया एक दफ़ा हमारे बुजुर्गों के पास, बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर आदमी, तो हाथ डाल के कोर्ट में कहने लगा मदरसे का कितना को खर्चा है। तो मैंने लगे आप बात करें, कहने लगा जी मेरा ख्याल है आप सारा मेरे ज़िम्मे लगा दें, 100 200 400 रुपये आप छोड़ दें। तो फरमाने लगे आप देंगे फिर हिसाब भी करेंगे, हमें वो रब देता है जो बेहिसाब ही देता है और हिसाब की रुसवाई भी नहीं डालता। लिहाजा आपका जो अंदाज़ है वो बताता है कि आपके लहजे में वो वाला अंदाज़ है। वो कुछ लोग आके ना जी वो कहते हैं जी कि देखो पैसे लगन वाले दे सानू 10 असी ला दईए, मैं क्या तुझे किधर और ही ला लो। अगर आपको किसी पर इतमाद ही नहीं है, आपका लहजा ही कुछ और तरह का है, तो इसका माना क्या है। मेरे अजीज़, लोग तो थोड़ा देते हैं तो परेशान करते, उस रब की तरफ रुजू करें जो इतना देता है कि बंदे ले ले के थकते हैं, वो दे के नहीं थकता। अल्लाह के हुजूर अपने आंसू बहाएं, कुछ वक्त इबादत के लिए रखे। आप जितने भी अंबिया के तज़किरे पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़ा ही रोया करते थे। अल्लाह करीम ने पूछा जन्नत के लिए रोते हो कि दोज़ख के खौफ से? कहा मालिक मैं तो तेरे लिए रोता हूँ, तेरी चाहत में रोता हूँ, तेरे लिए आंसू बहाता हूँ। मेरे अजीज़, अंबिया हो, सुलहा हो, अतकिया हो, सिहापा हो, अहले बैत हो, जम के आंसू बहे। जिन्हें रोना आ गया ना उन्हें मनाना आ गया, जिन्हें रोना आ गया उन पे रहम आ गया, जिनकी आंखें छलक पड़ी वो महबूब को पा गए। शर्त ये है कि तन्हाई हो, बंदा अकेला हो, राज रोए और रोए अल्लाह रसूल के, उनकी बारगाह में रोए। बाहर तो निकले तो फिर तो मुंह धो के निकले ना, आंसू बंदों को नहीं दिखाने, आंसू अल्लाह रसूल को। मेरी आपसे दर्द से गुजारिश है, मैंने जैसे कहा ना दुआएं बड़ा इनकलाब बर्पा करती हैं, एक रात सिर्फ मेरे कहने पर 2 रखते नमाज पढ़े, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़े 70 बार, फिर इतना ही हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम अर्ज़ करे, फिर हज के रोए, अल्लाह से अर्ज़ करे अल्लाह इस वतन के हालात भी बदलो, अल्लाह उम्मत के लिए भी आसानी कर, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर फरमा दे। हम अगर इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर अपने रब की बारगाह में दुआओं का रिश्ता मजबूत करेंगे ना, तो बड़ा ही करीम है। जब इतने सारे लोगों के हाथ उठते हैं, मैं यहाँ भी कई दफ़ा लंबी दुआ करता हूँ जुम्मे के बाद, सोचता ये हुई इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों लोग हैं, तो हो सकता है किसी एक नेक आदमी की आमीन से कईयों का भला हो जाए। कईयों की तो जम के दुआएं करे, अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करे। एक तो बंदों के लिए नहीं रोना और एक बंदों के सामने नहीं रोना। रोना है तो अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए, और चूंकि ये मामला ही अल्लाह रसूल के साथ है तो फिर बंदों के सामने क्या रोना। जब उनके लिए रोना है तो फिर उनकी बारगाह में रोना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता, इंसान होए उसके आंसू निकले अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में सही दर्जे की रवायत है, करीम फरमाते अगर तुम वो जान लेते ना जो मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें उसका इल्म होता ना जिसका मुझे इल्म है, तो फरमाया तुम रोया करते, तुम्हारी कैफियत और हो जाती। बाज़-औक़ात कुछ लोग गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते, हंसते हैं, शुगल बनाते। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे फ़यूज़ बरक़ात ऐसे हैं जो उन्हें मिलने होते हैं, नहीं मिल पाते। तो वो गैर संजीदगी तबीयत की
لہجے کی غیر سنجیدگی ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، رستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آیا اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے، جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہو گئے تو کسی اور پر بھی کر لیتے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا، پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی خوب کے دعا کر دے سا، یا بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر دے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ اس نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی، پر ابھی نہیں میرے پاس، کہتے میں نے ٹانٹ دیا۔
सआदत मंद खातून थी, हौसले से डांट बर्दाश्त। तो कहने लगी गलती हो गई, मुझे नहीं बार बार कहना चाहिए था, आप तो नाराज ही हो गए, लेकिन एक बात ये कहनी थी कि आप ही मेरे शौहर हैं, मैं आपसे ना कहूं तो फिर किससे जाके कहूं? आपसे ही कहना है ना, मेरे आप है ना मेरे सर के ताज, तो किससे और कहूं मैं, और किसी से कहूं? शेख फरमाते हैं मेरे हाथ में कुछ चीज थी, हाथ कांपा, वो चीज गिरी, छम छम मेरे आंसू टपके, छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दी। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना मालिक बड़े दरवाज़ों पे गया हूं कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूं तो किसकी बारगाह में जाके कहूं? मैं बीमार हूं और शिफाओं के लिए तरस गया, मैं मकरूज हूं और जान छुड़ाने के लिए तरस गया, मैं कमज़ोर हूं और सआदत पाने को तरस गया, मैं बेकैफ हूं और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया, मैं बेकैफ हूं और चाहता हूं मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया पर डरा अल्लाह के, आंसू फार सेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब किबला रो ही पड़े, फार सेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलता है। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूल कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पार पवे जिस वेले उदो पार बनावन अखियां, ते बेदर्दा महबूबां दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते, ओ यारो कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी, कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजवे अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फ़लस्तीन का नाम न लिया करूं, शर्म आती। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है, ये कोई हमारे कालम निकले के उन्वान है, ये को हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है, ये तो शर्म से मर जाने का मकाम, ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है।